Good morning, everyone. So we were at section D of this polymer chemistry, and another important topic in this section D, is the discussion about some important commercial polymers. And there are some different classes which have been asked to discuss. First being the polyolefins, then polystyrene, and the copolymers of styrene. So starting from polyolefins first, olefins means the polymer which have got a kind of double bond, carbon-carbon double bond. For example, the case of ethylene, there is double bond between two carbons, and this double bond is used to polymerize the molecule, and the polymer thus we obtained is called polyethylene. Similarly is the case here: polypropylene, polybutylene, and polyisobutylene. So these are a few examples of polyolefinic class. And then there is another category of polymer called polystyrene. Here the monomer is styrene, and it gets polymerized to form this polymer polystyrene. And in third category, we will talk about the copolymers of styrene. Now you know what are copolymers. Copolymers are the polymers which have more than one monomer united to form a different molecular weight or different chain length of copolymeric molecules. कोपोलीमर में सिंपल पॉलीमर में डिफरेंस ये रहता है कि सिंपल पॉलीमर में जो मोनोमर होता है वो सेम रहता है, यानी कि होमोजीनस रहता है, एक ही मोनोमर से पॉलीमराइजेशन हो रही होती है. और जो कोपोलीमर्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के जो मोनोमर है वो यूनाइट करके पॉलीमर बना रहे होते हैं. तो उस सिचुएशन में जो पॉलीमर बनता है उसको कोपॉलीमर कहते हैं. सो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम polyethylene first. This is the ethylene molecule, and when this gets polymerized it forms polyethylene. So the number n outside the bracket denotes that n number of such molecule have just added with each other, and they are forming a long polymeric chain of polyethylene molecules. So this is a versatile plastic made from ethylene gas by polymerization either by high pressure method or by low pressure method. The polyethylene produced by high pressure method possess low density, and it is called low density polyethylene. अब ये important है यहाँ पे. Whereas the polyethylene obtained by low pressure method possess high density, and it is called high density polyethylene. So it is very important to know what is LDPE. It is the question which is repeatedly asked in examination कि LDPE और जो HDPE है इसमें क्या डिफरेंस होता है. तो जस्ट क्योंकि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, दोनों के दोनों जो पॉलीमर बनेंगे वो इथाइलिन मोनोमर से बन रहे होंगे, बट द डिफरेंस इज द कंडीशन विच आर एम्प्लॉयड टू फॉर्म द पॉलीमर हेयर. अब इन्होंने कहा कि हाई प्रेशर अगर यूज़ करेंगे ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस तो वहाँ से लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन बनता है, और अगर हम लो प्रेशर कंडीशन रखेंगे तो वहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन बनता है. तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में. सो लेट अस फर्स्ट वी स्टार्ट विद लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन. जैसा मैंने आपको पहले कहा कि दिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग दिस इथाइलिन मोनोमर. इस मोनोमर को हीट करना है अंडर हाई प्रेशर कंडीशन. अब देखो यहाँ पे प्रेशर की कंडीशन हाई है, ये आपने इक्वेशन अच्छे से याद करनी है कि जब हम लो डेंसिटी पॉलीमर बना रहे हैं तो जो प्रेशर रहना चाहिए वो 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक तक रहना चाहिए. तो इससे जो रिजल्टिंग पॉलीमर बना है उसको हम कहेंगे पॉलीथाइलिन. लेकिन ये कैसा होगा, ये लो डेंसिटी होगा. अब इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द सिंथेसिस ब्रांचिंग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और इस ब्रांचिंग की वजह से क्या होता है कि पॉलीमर की जो डेंसिटी रह जाती है लो रह जाती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर स्टेट चेंज होगी तो उनको फिट करना लैटिस स्ट्रक्चर में ज़्यादा बेटर रहता है, वो ज़्यादा अच्छा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट देते हैं. बट अगर ब्रांचिंग आ जाएगी तो जो इंटर मॉलिकुलर स्पेसिस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से पॉलीमर की डेंसिटी एज सच डिक्रीज हो जाती है. तो इन दिस केस वी विल गेट लो डेंसिटी पॉलीमर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो रहेगा क्योंकि डेंसिटी लो है तो इसके जो लैटिस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना आसान होगा. तो इन दिस केस वी ऑल्सो गेट अ पॉलीमर विच हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट. तो लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन इज ट्रांसपेरेंट ऑफ मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई टफनेस. इट इज़ सॉफ्ट एंड वैक्सी मटेरियल. तो यहाँ से जो पॉलीमर बनेगा वो सॉफ्ट मटेरियल होगा, सॉफ्ट प्लास्टिक बनेगा यहाँ से. अब इसकी कुछ खासियत होती है. इट इज़ केमिकली इनर्ट, इट हैज़ गुड रेजिस्टेंस टू एसिड्स एंड एल्कलीज, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ना इसको. इट हैज़ गुड टफनेस एंड प्लाइबिलिटी ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. ये काफ़ी टफ पॉलीमर माना जाता है और काफ़ी रेंज ऑफ एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इसके कुछ जनरल यूजेस की बात यहाँ पे की है. इट कैन बी यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लास्टिक फिल्म बैग्स. तो जितने भी आपके फूड रैप होके आते हैं उनको हम प्लास्टिक की जो बाहर से लेयर बना के रखते हैं उसके लिए यूज़ होता है लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन. It can also be used for insulation of electrical wirings and cables.
इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लेक्सिबल पाइप्स टॉयज़, क्योंकि सॉफ्ट पॉलीमर है तो जो फ्लेक्सिबल पाइप्स और टॉयज़ हैं या जो स्क्वीज़ बॉटल्स है उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ द केस ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। अब वहाँ पे प्रेशर हाई रखते थे तो यहाँ पे हम प्रेशर लो रखेंगे। सो दिस इज़ जनरली सिंथेसाइज अंडर लो प्रेशर कंडीशन। और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे थाउजेंड्स में प्रेशर था और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम रखने वाले हैं हम। तो प्रेशर हम 6 to 7 एटमॉस्फेरिक का रखेंगे यहाँ पे। और इसकी खास बात ये है कि ये एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में सिंथेसिस होती है और काफ़ी पॉपुलर कैटालिस्ट है जिसको हम कहते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये इन्होंने बाई मिस्टेक लिखा है यहाँ 1000 to 2000, तो इसको आपने इग्नोर करना है। इसको ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन को सिंथेसाइज करने की है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू रहेगी वो 6 to 7 रहेगी, ना कि 1000 to 2000 जो कि पिछले केस में है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इन कंडीशन में सिंथेसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर से पॉलीथाइलिन ही बन रहा है, लेकिन इसकी क्या होने वाली है, हाई डेंसिटी होने वाली है। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि इस कंडीशन में जो पॉलीमर बनता है वो ब्रांचड नहीं होता, वो स्ट्रेट चेन होगा। और मैंने आपको पहले कहा कि जो स्ट्रेट चेन है उनको अरेंज करना और फिट करना लैटिस में आसान होता है। तो इस केस में जो पॉलीमर मिलता है उसकी डेंसिटी भी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि उन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। दैट इज़ वाई इन दिस केस द मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। अगेन दिस इज़ इनर्ट, इसकी काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी उससे मिलती जुलती रहती है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस कि ये हार्ड मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो वहाँ पे सॉफ्ट पॉलीमर था, ये हार्ड पॉलीमर है यहाँ पे। इट इज़ क्वाइट हार्डर, टफर एंड हैज़ ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन। तो ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। तो ये हमने एक पॉली ओलेफिन की बात कर ली, पॉलीथाइलिन की बात की हमने। अब हमारा दूसरा ओलेफिन आ रहा है जो ब्यूटाइलिन है, पॉली ब्यूटाइलिन कहेंगे। तो इसका मतलब वहाँ पे अगर इथाइलिन मॉलिक्यूल था तो यहाँ पे हम ब्यूटाइलिन मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे होंगे। तो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे है। ये आप देख रहे हैं 2 कार्बन और 2 कार्बन यहाँ पे, तो ये ब्यूटाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें जो बेसिक लिंकेज रहने वाली है, जहाँ से पॉलीमराइजेशन होनी है, वो फिर से वही एल्कीन वाला पार्ट है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ फॉलिंग अंडर द कैटेगरी पॉलीओलेफिन। तो इसकी जब पॉलीमराइजेशन करेंगे, दिस इज़ ऑल्सो अचीव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट की कंपोजिशन रहती है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड और टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड। इसका जो कम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब ये मोनोमर कंबाइन करेगा तो इस तरह का पॉलीमर बनेगा, इसको हम कहेंगे पॉली ब्यूटाइलिन। जब भी आप पॉलीमर लिखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर एन लिखना जरूरी है। एन का मतलब है कि ये एन नंबर ऑफ मोनोमर से के कम्बिनेशन से बना हुआ है। इसमें हम श्योर नहीं है कि कितने हो सकते हैं, वो 1000 से लेके लाख्स तक हो सकते हैं। सो दीज आर अ फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस पॉली ब्यूटाइलिन, जिसकी मैंने पिछले स्लाइड में बात की। इट इज़ आइसोटैक्टिक पॉली ब्यूटाइलिन एंड इट इज़ हाईली क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो अरेंजमेंट रहती है वो काफ़ी ऑर्डर्ड रहती है। आपको पता है क्रिस्टलाइन पॉलीमर क्या होते हैं, अमorphous पॉलीमर क्या होते हैं। इसके डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट की बात की हुई है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू एसिड्स, अल्कलीज एंड ऑयल्स। इसके यूजेस क्या हैं, दिस पॉलीमर हैज़ हाईली, यहाँ आएगा, दिस पॉलीमर इज़ हाईली यूज्ड इन रबर बेस्ड इंडस्ट्री एज इट रिजेंबल इन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ टू नेचुरल रबर। अब इसकी खासियत क्या है कि नेचुरल रबर से मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर होगा। अभी हम आने वाले लेक्चर्स में रबर की बात भी कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो नेचुरल रबर से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसकी प्रॉपर्टी भी रबर लाइक रहती है। तो रबर इंडस्ट्री में इसका काफ़ी रोल रहता है। इसी का एक और वर्जन है ब्यूटाइलिन का ही, आइसोब्यूटाइलिन। अब आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि अगर आपको वो क्लियर होगा तभी आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन, नॉर्मल ब्यूटाइलिन में आप देख रहे थे कि CH3 ग्रुप नीचे को ही लगा हुआ था यहाँ पे इसके आगे। ये आइसोब्यूटाइलिन को रिप्रेजेंट करा, जिसमें आप देख रहे हैं कि बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ को मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द केस ऑफ आइसोब्यूटाइलिन। तो जब आइसोब्यूटाइलिन मोनोमर आपस में कंबाइन करेंगे तो पॉली आइसोब्यूटाइलिन बनता है, यानी कि ये वाला पॉलीमर बनता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और यूजेस हैं, वो काफ़ी इससे मिलते जुलते होंगे पहले वाले से, तो आप ये खुद स्टडी कर रहे होंगे यहाँ पे। इसमें ऐसा इस चैप्टर में ज़्यादा समझाने का केमिस्ट्री वाइज कोई है नहीं, इसमें काफ़ी थियोरेटिकल पोर्शन है। बस आपको एक डिस्कशन, मेरा पर्पस सिर्फ ये कि आपको एक डिस्कशन किया जाए कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, सिंथेसिस कैसे होने वाली है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री वाइज टर्म आ रही होंगी तो हम उनकी बात करेंगे वहाँ पर।